will do the heart of the tree, the poem. And this is written by Henry Kyler Banner. Okay, so here in this poem, poet is trying to tell us the importance of planting a tree, how trees bring harmony and causes development of a country. It's useful for us as well as the coming generations. So here it is your first stanza. Okay, the poet starts poem by asking a question, that what does he plants, who plants a tree. This is a question. Okay, and here is the answer also. Okay, these all are answers. So in this way, this question, why he is asking question, the poet is asking question, why? Because in this way the poet is trying to tell us the importance of tree, that you can say a person who plants a tree not only plant a tree but also plant several things. So these rest of lines are answers, and this last one is the closing line of answer. Okay, so next one, he plants a friend of sun and sky. Why poet is telling that friend of sun and sky? Just because it means that a tree reduces the heat of the sun, and it reduces the temperature and purifies the atmosphere by trapping the dust, right? So trees, sun and sky all are interdependent to each other. How? Because trees uses sunlight for photosynthesis, right? And trees take carbon dioxide from the environment and return oxygen. So in this way the poet is telling that sun, sky and trees all are friends, and the person who plants the tree, they also plants the friend of sun and sky. Clear? Next line, he plants the flag of breezes free. Breezes free means, see, gentle winds that move with full freedom. Okay, see here how it looks like. It looks like flag, right? It means that trees ensure the free gentle breezes. It seems like flag when wind blow gently, right? Understood? Next, the shaft of beauty towering high. Towering high means rising. Okay, you can see how long trees are, right? So the shaft of beauty towering high means when a tree grow high towards the sky, it looks so beautiful. He plants a home to heaven. Anai means near or close. Heaven, you know very well, Swarg. So wherever trees, that place turns into heaven. वो place जो है ऐसा लगता है कि आसपास जो है स्वर्ग हो. यू कैन ऑल्सो फील, आप जब गार्डन या पार्क वगैरह में, नॉट पार्क, गार्डन में जब आप जाते हो या फिर आपके घर में आप प्लांट करते हो ट्रीज, वहाँ पर मतलब कितना अच्छा लगता है ना. For song and mother croon of bird. मदर क्रून, मदर बर्ड्स की जो मम्मा है, ठीक है, और क्रून जो सिंगिंग करती है, जो बर्ड्स सिंगिंग करती है. इन हर्स्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट. हर्स्ड मीन्स साइलेंट, ठीक है, साइलेंट कब की बात है? ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सन हैज़ जस्ट गॉन. तो इवनिंग टाइम, जैसे ही सनसेट होता है उस टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उसे ट्वाइलाइट कहते हैं, ठीक है. तो उस टाइम एकदम शांति में जब बर्ड्स की जो मम्मा होती है क्रून करती है, वो सिंगिंग करती है. ओके, सो और एक चीज़ यहाँ पर सेकेंड थिंग समझ में आ रही है कि सारे जो ट्रीज़ बर्ड्स है वो कहाँ पर आते हैं? वो ट्रीज़ में आ जाते हैं शाम होते होते अपने अपने घरों में, राइट. तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, जो पर्सन, ओके, द one who plants the tree also ensure the shelter of the birds, right, and whose singing is silent in twilight gives us pleasure. आप मतलब जाहिर सी बात है वो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड्स सिंगिंग करते हैं, है ना. सो लास्ट में क्या करें? द ट्रैवल ऑफ हेवेंस हारमोनी. द ट्रैवल मीन्स वॉट? हाई टोन, ठीक है. तो हेवेंस हारमोनी मतलब जो स्वर्ग की जो खूबसूरती होती है, शांति होती है, जो एनवायरनमेंट होते हैं इतना खूबसूरत सा, तो उसकी फीलिंग यहाँ पर होती है. तो यहाँ पर ये भी क्या जो पोएट है वो कह रहे हैं, द वन हु प्लांट्स अ ट्री एंश्योर पीस, हारमोनी एंड comfort for himself as well as others, right. So जो person these things he plants, कितनी सारी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी चीज़ें. कोई पर्सन जब ट्री प्लांट करता है तो वो सिर्फ प्लांट नहीं करता है, वो इसके साथ साथ 7 चीज़ें प्लांट करता है. सो दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री. अंडरस्टूड? Here it is second stanza. What does he plant who plants a tree? Here again
poet is asking a question but the answer are different. Okay, here it is words meaning, you can see here. See, so what is the answer of this question? Who plants a tree? He plants cool shade and a tender rain. You must have seen, you must have felt that trees provide us cool shade in scorching day, right? जब भी आपको धूप लगती है ज़्यादा और अगर आप रोड पर रहते हो, बाहर रहते हो, you always try to search the trees. Why? Just because trees provide us cool shade, right? Okay, and tender rain means what? That poet is telling that trees attracts the cloud and cloud causes the rain. Okay, and seed and bird of days to be. Days to be means what? Times to come, that is future. It means what? That trees give birds which bloom and seed which sprouts and causes the more plants. Have you seen? जो यहाँ पर trees रहते हैं वहाँ पर और भी सारे plants रहते हैं, है ना, उनके seed वगैरह से, राइट? तो इससे क्या होते हैं, एक ट्रीज मतलब बहुत सारे, और भी उसके कारण बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट वन, डेज टू बी मतलब फ्यूचर में. तो अभी जाहिर सी बात है एक ट्रीज बनने में कितने सारे ईयर्स लग जाते हैं, और फिर ये ट्री जो प्लांट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो करके कुछ सालों में ट्रीज बन जाते हैं इन फ्यूचर. Okay, so and years that fade and flush again. Fade and flush again means what? Fade out and then brighten up. See here, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टाइम के बाद that old tree will die after years. Okay, after a certain period of time, and new tree will grow. New plants will grow and turn into tree. New plants sprouts from the seed of the old tree, right? Fade out means that old tree will die and flush again means जो उस tree से, जो seed से जो plants जो बनेंगे, जो new trees आएंगे, उसे flush again मतलब वो brighten कर देंगे अपनी land को, उस जगह को. Okay, next, he plants the glory of the plain in the sense of beautiful scenery on the earth, and you know very well the benefits from the trees. The glory of the plain here means the beautiful scene that trees gives us. Okay, he plants the forest heritage. Forest heritage means what? History or tradition that lasts for years. Okay, so one who plants the tree, he plants the forest heritage, means he is planting not only a tree but a forest which will become heritage. Why? Because a tree lives last long. That's why here poet is saying that a person who plants the tree, he plants the forest heritage. Okay, the harvest of a coming days. What is mean by harvest? Reward. Okay, so it means that we know that trees gives us fruits, flowers, birds, wood, medicine and many more things, right? So these things are nothing but reward of planting tree. Okay, all right. Next, the joy that unborn eyes shall see. It means that the baby, the generation who is yet to be born, they will see the trees, because if in present time, see, if you are and we see the trees, because our past generation planted that trees, right? And they will grow and old and die someday. But if we will not plant trees right now in present time, then our coming generation can't see. That's why here poet is saying that one who plants the tree also plant trees for unborn eyes, that is for the coming generation, for the future. Okay, so these were the things a person plant. He plants a tree. And okay, so again in third stanza poet is starting that with a question that what is the plant who plants a tree. Okay, but here he is answering this question as a responsible citizen. Okay, and as a responsible family member, as a responsible neighbor. Okay, and also he is mentioning here the benefits we get from the trees.
Okay, so let's get started with the answer. He plants in shape and leaf and wood. Okay, and here these are your words meaning you can see here. So in shape and leaf and wood, in love of home and loyalty. It means he plants ways of saplings, leaf and wood. वो जो है जब trees plant करते हैं तो वो एक ट्रीज को प्लांट करने से तरह तरह के और भी बेनिफिट्स मिलेंगे उस ट्रीज से, है ना। और उस मतलब नए पत्ते और भी प्लांट्स उससे बनेंगे, वुड मिलेंगे, कितनी सारी चीज़ मिलेंगे। तो वो सिर्फ एक ट्रीज प्लांट्स नहीं कर रहे, वो और भी न्यू प्लांट्स को उससे मतलब वो बन सकते हैं। तो इन सेप एंड लीफ का मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि उससे नए भी जो प्लांट्स बनेंगे वो भी प्लांट कर रहा है। वाई? बिकॉज ही लव्स हिज फैमिली एंड ही इज़ लॉयल फॉर हिज फैमिली, दैट्स वाई he love his family and loyal. Okay, so that's why he is planting a tree. And far cast through thought of civic good. Civic good means you can see here welfare of the people. Okay, so and far cast thought of civic good, it means that he is thinking about future and being a good citizen. Civic good means being a good citizen. Okay, and just because he केयर अबाउट हिज नेबर, और फिर अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए उसको फिक्र है। और फारकास्ट मतलब यहाँ पर हो रहा है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर फारकास्ट मतलब वो दूर को, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए वो वैसा डिसीजन ले रहा है कि वो प्लांटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बीइंग अ गुड सिटीजन ही इज प्लांटिंग अ ट्री। His blessings on the neighborhood, इट मीन्स वॉट? ब्लेसिंग्स। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट? दैट ही इज बीइंग वेल विशर, ओके, एंड ही इज ब्लेसिंग्स नेबरहुड। हाउ? with planting a tree. By planting a tree he is helping his neighbor, okay, by planting his trees, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. It means that he holds the growth, the development of our land in his empty of hand. It means here you can say that a common people could help in growing of land by planting a tree. Next, a nation's growth from sea to sea. It means that a person could help his nation and see, देखो sea to sea का मतलब यहाँ पर होता है complete all the world. Okay, so a nation and all the world by planting a tree. Here poet emphasizing the wealth of trees and telling that growth and development of a country and a world depends upon wealth of trees. Obviously, how many things we get from trees? First of all, oxygen, fruits, flowers, seed and wood and medicine. कितनी सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती है। तो जिस कंट्री में या जिस जगह जितनी ज़्यादा ट्रीज रहेंगे वो जो जगह है पर्टिकुलरली वो उतना ही डेवलप करेगा। ओके, स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लांट करता है ट्री वो कॉन्शियस है इन सारी चीज़ों के बारे में। ओके, एंड ही ऑलरेडी नो व्हाट ही इज़ डूइंग, दैट्स व्हाई ही इज़ डूइंग दिस, right? So he knows the importance of tree, he knows the value of planting a tree, that's why he is planting a tree. Okay, यहाँ तक समझ में आ गई? So these were your 3 stanza, ये जो पोएम था, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। Okay, so if you are reading poem then obviously you need to know also the figure of speech, okay, that is literary devices. So this is your first stanza. Just see what are the literary devices are there. Okay, so this is your first line, that what does he plant who plants a tree. This is question. It looks like that it is rhetorical, right? Rhetorical question लग रहा है because यहाँ पर question पूछ रहे हैं. But see, what if I will say that that is not rhetorical? This is hyperphora. How?
सी द डिफरेंस। रिटोरिकल क्या होता है ना, जब कोई क्वेश्चन पूछता है बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर, यू कैन से क्वेश्चन टैग लाइक, जरूरी नहीं है उसका आंसर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप लो, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला आंसर करे ही करे कि हाँ यू आर सो स्टूपिड, येस यू आर स्टूपिड, लाइक दिस। ओके, सो दिस काइंड जब अगर रहते इस टाइप का, दैट इज रिटोरिकल। ओके, ये क्या है, हाइपोफोरा। हाउ इट इज हाइपोफोरा, जस्ट बिकॉज, ओ ओके, हाइपोफोरा को आप एंटीफोफोरा भी कहते हैं, एंटीफोफोरा, एंड इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्पीकर पोजेज अ क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो पोएट ने क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है, दैट्स व्हाई इट इज हाइपोफोरा। क्लियर, गुड। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एमसीक्यू में, दैट व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, which figure of speech is it is? Okay, so answer this one. Next देखते हैं personification. You know personification क्या होता है? Personification gives human traits and qualities such as emotions or desire. Okay, तो human traits का जो होता है, उनके जो क्वालिटीज़ वगैरह होते हैं, जो डिज़ायर होते हैं, वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं। तो फ्रेंड ऑफ अ सन एंड स्काई, क्या सन और स्काई का कोई फ्रेंड होता है क्या? नहीं ना, ये तो ह्यूमन का होता है ना, बट यहाँ पर ट्री को बताया जा रहा है सन और स्काई का फ्रेंड है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है? रेपिटेशन होता है, नॉट वोवेल साउंड का। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, एस साउंड, एस साउंड यहाँ पे, एस सन स्काई, एस साउंड। ओके, नेक्स्ट फ्लैग फ्री, फ एफ साउंड, नेक्स्ट होम हेवन, एच साउंड, नेक्स्ट हर्स्ट हैप्पी, हर्ड, ये हो गया इस लाइन में। फिर इस लाइन में हेवन हार्मनी, तो एच साउंड। अगर सपोज करो ऑप्शन में आपको कोई भी नहीं दिया गया, हालांकि अभी इन सब का भी अलग अलग आप देखोगे, ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच, बट सपोज करो कि आपको एमसीक्यू में वो नहीं दिया गया है, तो आप उसे यहाँ पर हर्स्ट हैप्पी हर्ड, इसे लाइक एलिट्रेशन का भी मतलब आपका सही होगा। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही आंसर हो जो आप सोच रहे हो सकता है आपके टीचर के अकॉर्डिंग वो कोई और आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच वेरी कर सकते हैं, डोंट वरी, एक के 2-3 फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा है। यहाँ पर और भी फिगर ऑफ स्पीच है, देखते हैं और कौन कौन से। ओके, मेटाफर। मेटाफर कौन क्या होता है? अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया टू मेक कंपैरिजन। देखो, वो एकदम से ट्रू नहीं होता है बट कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन भी ऐसे नहीं करता है एज लाइक ये लगा कर नहीं करता है यूज़ करके, लाइक सिमिली में होता है। मेटाफर में डायरेक्ट उस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को डायरेक्ट बोल दिया जाता है, बस नॉट लाइक का वर्ड यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे द हार्ट ऑफ द ट्री, ट्री को हार्ट होता है क्या? तो आपको जो पोएम का नाम है वो खुद एक यहाँ पर मेटाफर हो गया, द हार्ट ऑफ द ट्री। सेकंड क्या हो गया? द फ्लैग ऑफ ब्रीजेज फ्री। ठीक है, यहाँ पर जो हवा है, जो जेंटल विंड है, उसे फ्लैग कहा जा रहा है, फ्लैग ऑफ ब्रीजेज, तो ये मेटाफर हो गया। शैफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, तो ब्यूटी यहाँ पर शैफ्ट ऑफ ब्यूटी इंडिकेट किया जा रहा है ट्री के हाइट को। होम टू हेवन एंड आई, तो जो अपना ट्रीज़ है उसे स्वर्ग का घर, मतलब उसके नियर बाय, मतलब ऐसा कहा जा रहा है वो स्वर्ग जैसा बन जाता है, हेवन जैसा बन जाता है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर मेटाफर। ओके, नाउ इमेजरी क्या होता है? मेक्स यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स दैट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन योर माइंड। एक विजुअल इमेजिनेशन आपके माइंड में करता है। द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, एक ऐसा लग रहा है ना कि एकदम कोई लंबी सी चीज़ हो जो एकदम आसमान की ओर बहुत
लॉन्ग नेरो हो और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज़ योर इमेजरी। यहाँ पर देखो मैंने कहा ना कि एक ही लाइन आप में अलग अलग आपका फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी इमेजरी भी है और मेटाफर भी है। अगर ऑप्शन में आपको इमेजरी है तो आप यही टिक करो, मेटाफर है तो मेटाफर टिक करो, अगर मान लो दोनों है तो मेटाफर करो। समझ में आई बात? ओके, सो दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा। मेटाफर तो मालूम है, अभी मैंने बताया क्या है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में मेटाफर क्या है? फॉरेस्ट हेरिटेज एंड कमिंग, सॉरी, फॉरेस्ट हेरिटेज हो गया और द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज। देखो फॉरेस्ट को हेरिटेज बताया जा रहा है और ट्रीज़ का जो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, सीड वगैरह, उसे हार्वेस्ट, उसे रिवार्ड बताया जा रहा है। तो द हार्वेस्ट यहाँ पर क्या हो गया आपका? मेटाफर, ठीक है। एक और है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल बी। तो अनबॉर्न आइज, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अनबॉर्न आइज है किसे कहा जा रहा है? वैसे आइज कहा जा रहा है बेबी को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़, मेटोनिमी, ये क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज रिप्लेस्ड विद अ वर्ड क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। An example of metonymy is referring to king as a crown. किंग को क्राउन भी कह सकते हैं, द क्राउन से किंग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और है आपका सिनेकडी, दैट अ सिनेकडी इज अ क्लास ऑफ मेटोनिमी। तो इसी का एक क्लास है, टाइप है, कह सकते हो। ऑफन बाय मीन्स ऑफ इधर मेंशनिंग अ पार्ट ऑफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कार है, ठीक है, तो कार को आप व्हीकल बोल सकते हो या फिर आप अदर नाम जब दे रहे हो तो मेटोनिमी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ व्हील बोलूँ तो दैट इज सिनेकडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार को सेट ऑफ व्हील से इंडिकेट किया जा रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अनबॉर्न आइज, ये जो बेबी है जो जन्म नहीं लिया है, अनबॉर्न आइज, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? मेटोनिमी भी हो गया और सिनेकडी भी हो गया। अगर आपको ऑप्शन मेटोनिमी है तो आप ये टिक करो, सिनेकडी है ये टिक करो। अगर दोनों ही ऑप्शन है तो आप दोनों भी टिक करो, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड। यहाँ पर एक तो होलो हीज हैंड, एलिट्रेशन दिख रहा है, एच साउंड, राइट, ओके। एंड आपका यहाँ पर सिंबल, आपका एक सिंबलिज्म फिगर ऑफ स्पीच है, ये वो कैसे हो गया? ट्री को सिंबल किया जा रहा है पीस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, ब्यूटी एंड गुडनेस से, ये सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर, तो वो सिंबल हो गया, ओके। एंड पॉलीसिंड्रेन, सॉरी पॉलीसिंडेटन, पॉलीसिंडेटन ये क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइसेस दैट यूजेस मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ द सेम कंजंक्शन, जैसे कि एंड, बट, इफ, इन सब का यूज़ बार बार करना। तो आप यहाँ पर देखो क्या है? इन, एंड, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? एंड बार बार यूज़ हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका? रेपिटेशन और पॉलीसिंडेटन, ठीक है। तो ये आपका दिस वन। और हाँ, एंड मेटोनिमी कैसे हो गया? द डेफिनेशन ऑफ अ मेटोनिमी, मेटोनिमी यहाँ पर ये भी, ये मेटोनिमी भी हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। ये भी हो गया एंड मेटोनिमी भी हो गया। मेटोनिमी कैसे? सैप, लीफ एंड वुड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रीज, ये ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट्स ऑफ ट्रीज है, राइट। वुड मतलब ट्रीज, लीफ किस में होते हैं? ट्रीज में, है ना। तो ये मेटोनिमी भी हो गया और योर पॉलीसिंडेटन भी हो गया। क्लियर? ओके, सो दीज आर द MCQs, ये क्वेश्चंस है, आप इसे स्टॉप करो वीडियो को, क्वेश्चन रीड करो एंड राइट डाउन द आंसर, ओके, एंड लेट मी नो। आप मुझे ये शेयर करो, आंसर लिख करो।